ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਖਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਨ ਸਵਰਗੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਸਵਰਗੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਔਰਤ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਧਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪਾਠ ਤੇ ਭੋਗ 28 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਂਦਾਵਰੀ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਢਿਲਵਾਂ ਕਲਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਤੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਪੰਜਗਰਾਵੀ ਖੁਰਦ, ਭਰਾ ਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹਰਫੂਲ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੋਤਰੇ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪੌਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
होया जाते हो क्या राजा की फरमान करता है, की हुक्म करता है। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਚਾਰ ਮਨ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਂ ਕਾਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਦੀ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ, ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਐਸੀ ਜਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਖਾਣੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਨਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਤਤ ਹੋਵੇ ਅਕਾਸ਼, ਸੁਣਿਆ ਜੀਵ ਲੋਭਾ ਕਾਲ, ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੀ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀਏ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਚੰਗੀ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਚੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਤੋਂ ਪਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਪਾ ਛਿੜਾਓ, ਕਰਨੀ ਧੋਤੀ ਉਤਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸੋ ਧੋਣ ਕਾ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਮਨ ਤੇਰਾ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਧੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਹ ਮਨ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ, ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਮੈਲਾ ਮਨ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੰਨੀ ਧੋਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕੰਮ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਾਸ, ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਧੋਤੀ ਉਤਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸੋ ਧੋ ਲੰਬਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੇਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਜਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਉਜਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਲਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਬੜਾ ਮੈਲਾ, ਮਨ ਬੜਾ ਮਲੀਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨ ਧੋ ਕੇ ਕਹੇ ਮਨ ਧੋ ਰਿਹਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
कपड़े साफ मारे नहीं, कभी मन भी साफ हो गया नहीं। मारे कहते तन धोते मन अच्छा ना हो, तन धो लिया मन भी धोता जाता, मन भी अच्छा होता। मन में कोई चीज अच्छा करती है, मन की मैल एक चीज कटती है। और गुरु पातशाह को सिखा ने उपदेश किया, पूछे महाराज कृपा करो कि कपड़ा मैला होता है जो सानू दिखता है, कोई दाग लगा हो, शीशे के अगे जाके खड़ो जाइए, वो शीशा दस देता कि तेरे मुंह से कालख लगी हुई है, तेरे मुंह से मैल लगी हुई है। तन से कपड़ा मैला हो दिस जाता है, तेरे तन का कपड़ा मैला है। पर पातशाह कहते महाराज जिस मन की तुसीं गल करते हो कि मन से किसी को दिसदा नहीं है, जे ये मैला हो तो फिर उधर किवें करिए, तो ये किवें। सारे सियाणे हम बैठे हो जिन्होंने ध्यान दिता है, सतगुरां की बाणी सुनी है, तो महाराज स्पष्ट रूप से कहते हैं गुरु नानक पातशाह कहते भाई जी कपड़ा मैला होता है तो साबन नाल धोईदा, पानी नाल धो के दर्पण कर लईदा। उसे पूछे कि मन मैला हो तो उसका की करिए। महाराज कहते भरी है मत पापा के संग, वो तो पै नाम के कहते भाई जिहड़ी मत है पापां दे नाल ये भी मैली हो जाती, मलीन हो जाती। तन रूपी कपड़ा मैला हो जाता है ते मन पापां करके मलीन हो जाता है, मैला हो जाता है। जे कोई मनुख गलत निगाह दे नाल करता है, आपां कहते हैं भी फलाने दा मन मैला है, ਇਹਦੇ मन ਦੇ ਵਿੱਚ मैल है, ਇਹਦੇ मन ਦੇ ਵਿੱਚ खोट है। ये मन की खोट द्वारा मत जी है वो पापा करके मलीन हो जाती है, मैली हो जाती है। भरी है मत पापा के संग, वो तो पहनावे के रंग नाम रूपी शब्द द्वारा मैल सतगुरु नानक पातशाह कहते पाई करी जाती। संगत विच बैठे हो आप वाहिगुरू शब्द का उच्चारण करते हैं, सतनाम का उच्चारण करते हैं, प्यार के नाल गुरु फतेह बुलाने हैं। इवें नाम साडे मन की मैल नूं कढदा है, जो वार वार जपते हैं, वार वार जपते हैं। किसी मनुख ने ध्यान दे एकाग्रता बनाओ, कहते ने एक महापुरुषों के कोल कोई रहिंदा सीगा ते हुण जिहड़े साधु हुंदे ने गुरु प्यारे नाम जपदे ते सतगुर कहते वो बंदा भी कहदा जिहड़ा बंदा हो के परमेश्वर की बंदगी नहीं करता। बंदा जिहड़ा सतगुर दे हुक्म विच चलदा है, हुक्म पछाणा है सो एको जाणै, एक नूं जाणदा है बंदा की है, सोई को माली कहते ने बंदा है जिहड़ा बंदगी करदा है। प्राणी को आया लाहा लैना लगा के पकड़े सब मुक्ति चली रैन। जिहड़ा प्राणी परमेश्वर का नाम नहीं जपदे महाराज समझाउंदे ने तो किहड़े पासे लग गया। गुरु की बख्शिश गुरु की रहमत सी, पर मां का हिरदा बड़ा कोमल हुंदा है। मां के तन नूं झोरा कदों लगदा है, मां के तन के उपर अपने दुख आउण, वो दुखां नूं मां दुख नहीं समझदी। पर जो मां की गोद के विचों बुकड़ चों कोई पुत्र चला जाता है ना, तो वह दुख मावां नूं बहुत हुंदा है। जिवें आपां देखदे हां जिहड़ा घुणा हुंदा है ना, वो लकड़ देखण नूं बाहरों बहुत सोहणी हुंदी है, पर जो उहनूं छेड़ के देखिए ਉਹਦੇ घुणे ना अंदरों खाली हो जाती, पूरा हो जाती है, टुट जाती है। इस तरह माता का जो पुत्र गया कि उस समय इन्होंने बहुत दुख होया। वो तन झोरा जिहड़ा सी खा गया, हर रोज गुरु घर जाना तो अपने पुत्र को चेते करके रोंदे रहंदे सन, उदन करते रहंदे सन। मावां आप दुख झल रही हैं, पर पुत्तां दा दुख मावां दे कोलों दर नहीं हुंदा। मां आप गिले पै जाती, पुत्त नूं गिले नहीं पाउंदी। गल करके जिवें आपां एक उदाहरण देवां, किसी ने किसी को ब्याजी पैसा लेना हो जाके वो
जिवें आपां किसी दे कोल पैसा लैके उहदे कोल समा लगा लैंदे हैं, इस तरह परमात्मा ने इस दुनिया में जीवन भेजन लग्या जीव ने बेनती की निरंकार मैनूं मात लो के भेजना कर जो तू बुलावेगा उदों मैं तेरे कोई फिर वापस आ जाएगा। जीव ने तो बेनती की जीव की अपनी मर्जी से नहीं करूँगी ना, ये पूरा परमात्मा का खुद ही जिहड़ा हुक्म है जिहड़ी मर्जी आती है। कई बार देखते हैं बुजुर्ग पर जीव उसके घर बैठे हुए कोल चले जाते हैं, नौकरी कोल चले जाते हैं, दवाई कोल चले जाते हैं, पेशा कोल चलिया जाती हैं। 120 साल के बच्चा इस कोटा की काम नहीं करता है जिन्हों की याद कोई नहीं बनती। क्योंकि परमात्मा की देन है जीवन, इन्होंने को जाके जी मंगता समा ये मार्ग की मर्जी है कि कितना समा मिलना। किसी को जीवन इतना मिलता है जीवन छोटी होती है, किसी को इतना समा मिलता है माता जी को जन्म नहीं ले सकता क्योंकि कर्म दे उन्हें सजा बार बार जगना मरते एक वो अंदर लगन की व्यवस्था चलाया जाता है। मांगे की जरूरत केटन की बजाय मातों के उंगलियां बाकी है मन पाए मटन में तू मैंने भेजने लगे जेदे तू बनावेगा वापस आ जाएगा। ते हाथ रोटी आप पढ़ते हैं अरदासा ने सर्व करते हैं जेहा जी लिखा गया हो मांगे कर लिया आपका सदे उठी जाए तेरा कर लिया मां होती है जितने तू बनावेगा वापस आ जाएगा। इसलिए जदों जीव दुनिया की आंदा असीं बड़ा खुश होते हैं ते जदों जीव दुनिया को वापस जाता असीं बड़ा रोन करते हैं, बड़ा रोने उदों असीं बड़ा प्रलाप करते हैं। इसलिए मालिक ने रोस भी कर दिया असीं रब दे मालिक ने गुरबाणी में कहा 10वीं बार सोई ले जाएगा रोस किसे सो ठीक है कि रोस किते करना है। इस तरह में चक समान मेरी मालकी है मैं तेन होर समा इतने रह नहीं देना जो मालक की अभी किराएदार ढा छड़ना पेगा। इस तरह परमेश्वर जिहड़ा ये करता है शरीर का मालक है कि जदों बुलावा दिता है जदों खेती बढ़ता है कच्ची बड़ी पक्की बड़ी होती उसकी मौत फिर साडा होते कि जोर नहीं चलता। इसलिए परमात्मा के हुक्म में जीवन को वो भाने अंदर रहना पैंदा है, वह भाना आखिर मंगना पैंदा है। विरले ने जिहड़े भाना सत करके मान लेंदे ने और नहीं तो मनुख जिहड़े ने उहदे भाने के अंदर दुखी होता है। उम्र मनुख की जिन्नी मर्जी वड्डी होवे दुनिया तो जान को कोई तैयार नहीं होता। हर मनुख कहता भी मैं होर जीवां होर दुनिया ते रहां। ये जीवन एक भुलेखा है। जिवें मेरे को प्यास लगी होती है मारूथा की धरती से उन्होंने गर्मी पैंती है जिहड़ियां लहरां ने ना मारूथल के उपर वो रेत जिहड़ी है दूर नूं झाकदी जिहड़ी है ये भी एक मिरग दी वांगू मिरग तृष्णा ज्यों जग रचना। ये भी मारे कहते एक तृष्णा जिहड़ी है एक भुलेखा है मैं दुनिया तो जाना ही नहीं है सदा सतीव रहना। आखिरकार वो अपना दम तोड़ जाता है वो पानी के मिलता नहीं वो रेत ही रेत होती है। सतगुरु जी महाराज कहते कि जिन्ना मर्जी जीवन मिल जाए किसी भी लिखा मेरा भी है पुत देख लेंदा है अगे सोचता है पुत्रे देख लवा पुत्रे भी देख लेंदा है फिर कहता है पुत्रियां के घर भी पुत्र हो जान ब्याह शादियां हो जान वो देख लेंदा फिर भी कहता अजे मन के सोचता है जीवन उन्ना ही जिउंदा जिन्ना परमात्मा ने ये जिंदगी दी है। तो सतगुरु महाराज कहते इस दुनिया के उत्ते झूठा प्यार है झूठी दोस्ती है पता नहीं किहड़े समय किहने साथ छड्ड जाना झूठा तां कहा महाराज जी रचना। इसलिए महाराज कहते जग रचना सब झूठ है जान ले बोले भी तां ही कहा ना संसार झूठा है जग की रचना झूठी तां कही है। कई बार पुत्र मां नूं छड्ड के चला जाता वादा नहीं कर सकता मां तेरे नाल रहांगा ते कई बार पुत्र नूं जीवन दे के मां चली जाती है मां वादा नहीं कर सकती मैं नाल रहांगी। इसलिए जग की रचना तां झूठी है पता नहीं किहड़े मौके पति ने पत्नी का साथ छड्ड देना
ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੀ ਕਿਹਾ ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਜਾਨ ਦੇ ਗੋਰੇ ਰੀਤ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਵੇਗਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾਣ ਕੌਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਰ ਪੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਏਵੇਂ ਗਈ ਬਿਹਾਏ। ਸਰ ਪੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਏਵੇਂ ਗਈ ਬਿਹਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਸੁੱਧ ਜੋ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਸੁੱਧੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਮਿਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲੈ, ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ, ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇਗਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੁਝੇ ਜਹਾਂ, ਅਗਰ ਰੁਕ ਗਏ तो वो जहाँ। ਜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਰੁਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੀਵ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਰੁਕ ਗਏ तो वो जहाँ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੀ ਦੇਖ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਪਿਆਰ ਕਰ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਉਹ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 3 ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ
ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਮਾਈਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ जी के परिवार ने नौवां ने बड़ी सेवा की है। जिन्हों ने घर आए गुरु ग्रंथ साहिब गुरसिखां की बड़े प्यार नाल सेवा की है। तो उदों अंदाजा लगता है भी माता जी की इस परिवार ने कितनी सेवा की होगी। परिवार ने माता जी ने बड़ी पुत्तां धीआं ने बड़ी सेवा की। ये साडा फर्ज बनता है। जदों माँ का फर्ज होता है उदों माँ वो फर्ज नूं पूरदी है। बचपन की अवस्था होती है, खाण पीण की सोझी नहीं होंदी, उदों माँ सुखे गिले का ख्याल रखती है। तो जो मावां के उत्ते दुख बनता है उदों पुत्रां का ते नौवां का फर्ज बनता होंदा, उन्होंने भी ये फर्ज पालना चाहिए। सो इस परिवार ने इस फर्ज को बड़ी तरह बड़ी सूझ बूझ नाल पालना किया है, बड़ी सेवा की है। 70 साल की माता जी ने अपनी उम्र जी इस जगत के उत्ते भोगनी की है। उन्होंने बेटी परिवार मंदर सिंह जी, पुत्र हरपुर सिंह जी, पोतरे चमकौर सिंह, पोतरे सरप्रीत सिंह, पोतरी अमनदीप कौर सिंह परिवार ने रल मिल के सेवा की है। तो ये सेवा का बड़ी सुंदर बाणी का कीर्ति संगत कथा कीर्तन का भाव विछड़ी हुई रोह सतगुरु की कृपा कर प्राप्त होवे। उन्होंने अपने चरणों च निवास बख्शण, पिछे परिवार में पाना मिलता बल उदम देन। असी सतगुरु की हजूरी में बैठे सरबत संगत के कोलों खिमा मंगते हैं भी कुछ बुद्धि अनुसार विचारा कीतियां ने, कोई बहुता ज्ञान नहीं है। ये सतगुरु ने जो ज्यों बुलावे तो बोला स्वामी स्वामी, जिवें परमेश्वर ने विचार कराई उवें करनी की है। जे कोई कोई गलती होवे तो साध संगत आप जी के कोलों खिमा दे जा चुका है। करो आज की सेवा प्रमाण। आओ जी गुरु चरणों के विच आपां अरदास बेनती करिए। राम करी महला तीजा आनंद ओंकार सतगुर प्रसाद नाम पिया मेरे भाई सतगुर ने पाया सतगुर का पाया से मन दिया बंदाइया भारत परिवार मैया शब्द लाड़िया सतगुर का गाओ गए मेरा आनंद जीव साया करे नाम पिया सतगुरु ने पाया
दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सतਿ सहाय। दसां पातशाह जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दरबार का ध्यान करो बोलो जी। पंजां प्यारियां जौन साहिबजादियां चारियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जन्म तेरा नाम जपिया वन के छकिया देख चलाई ते वाही देख सुन के अंडट कीता तिना प्यारियां चरण कमाई दा ध्यान करो बोलो जी। जिन्ना सिंगा सिगड़ियां ने धर्मे सिख दे बंद बंद कटवाए तपियां ने केसां विच पवाइयां बलदियां देगां विच बैठे आर्यनाथ चरवाए रमियां नाल खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते जड़े जिउंदे बन के जन नाल साड़े गए ततियां लोहां ते चंपड़े मारे तेरे भाणे नूं मिठा मिठा करके मंदे होए शहीद हो गए। इन्ना वर्तमान ते प्रातन सिंगा सिंगियां चंगियां दी कमाई दा ध्यान करो बोलो जी। बैरत में सरबत खालसे जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। नाम चलिया चलियान का सबका सब सुख हुआ जहाँ जहाँ खालसा जी साहब तहाँ तहाँ रखिया रखिया देव देवत के पैंच पंथ के देसे साहब के सहाय खालसे जी के गुरबाने बोलो जी। पंजां तख्तां सबत गुरुद्वारे का ध्यान करो बोलो जी। सिखां नूं सिक्खे दान के सदान रहत दान गुरेक दान साहु दान गुरसा दान दाना सरदान नाम श्री महमद सादी के दर्शन विश्राम चौकियां झंडे होंगे जुगो जुगा खादा सर्वों तीर्थों शांति का ध्यान करो बोलो जी। सिखां दा मानीवा मातु जी माता दे राखे आप अवतार वाहिगुरु जिन्ना गुरुद्वारियां तो गुरधामां तो पंथ नूं छुड़िया गया है बड़े दर्शन करा के सेवा संभालता नाम खालसा जी बख्शो जी। खेल माणियां दे मां गुरु ताणियां दे तान गुरु नी मुंडियां दे और गुरु नी आसरियां दे आसरे गुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आगे चरणों को पासा पासा बेटियां जोड़न करता लियो आगे वाणी सा जीवा तेरी दिया तिहा हुक्माए कले आनंदा सत्य उठे जाए महामाता सा माता मनजीता आदि विधि विश्वासा दी टूटी होते करो भ्रमण करके प्रवाह जीव शुरा देवी चिड़िया के धर्म पूजा करते सन उन्होंने होती शांति वास्ते प्रवाह पासुत लेके उनके वाणी आए बिन सारे जंत मटाए जी के एकाकार सहकर प्रभा के सुबह अमृत मिले को पाए साहब जी दे स्थान गुरुद्वारा दावरी साहब पातशाह के दसवीं के मंगला गीत करता है रागी सिंह ने कीर्तन किया गुरबाणी दे जाप करदे को कीर्तन करदे को आप जी पवित्र हजूरी अंदर आउंदियां जांदियां को की प्रकार दियां भुला रह गया होंगे माफ करना कि दो सुत दे
बख्शना पिछे परिवार नूं साथ संबंधियां सारिਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਦਾ ਬਾਤੇ ਉਦਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਦਤਾਰਤਾ ਜੀ ਇਸੇ ਭਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਕੇ ਪੰਚਮ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਤਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਸਨੀ ਲੈ ਕੋਵੇ ਜੋ ਜੋ ਛਕੇ ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਜਪੇ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਿਲ ਕੋਲ ਭੇਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਚੱਲਿਆ ਸੁਲਾ ਕਰਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੋ। ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਲਾਹੇ ਬੰਦ ਹੋ ਮਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਵਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਪਾਈ ਆਕਾਲ ਕੀ ਨਮਨ ਨਾਇਓ ਸਤ ਸੇ ਕਹਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਉਤਮ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਕੀ ਰਹਿਮ ਪਰਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਗੇ ਬਖਸ਼ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵਕੇ ਗੁਰੂ ਭਾਰ ਉਤਾਰਨਹਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵਕੇ ਗੁਰੂ ਭਾਰ ਉਤਾਰਨਹਾਰ ਬੁੱਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਪਾਵੋ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਵਿਦਾਰੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਉਪਰੇ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਵਿਦਾਰੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਉਪਰੇ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ਹਰ ਜਨ ਸਿਮਰਿਆ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਤਾਪ ਉਤਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਹਾਉ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰਹਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਰਾਖਿਆ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਭਾਖਿਆ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰਹਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਰਾਖਿਆ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਭਾਖਿਆ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ सपना सबरे बचना सब कलाम हार नानक धन सुहागनी जिन सह नाल प्यार। गुरबाणी के महावाक अनुसार साढ़े बहुत ही पूजनीक सत्कारयोग बीबी अमरजीत कौर जी जो पिछले दिनी संखेप की बीमारी के कारण इस खानी संसार को विकसित हुए हैं। आप सब माई भाई दोस्त मित्र रिश्तेदार साख संबंधी नगर निवासी सारे उन्होंने श्रद्धा के फुल भेंट कर ली परिवार नाल साझा कर ली पहुंचे हो। सारे को वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बीबी अमरजीत कौर जी जो थोड़ा समय 1.5-2 महीने बीमार रहे और बहाना बनया और इस संसार में चले गए, क्योंकि पिछले साल मेरे साल पहला जो उन्होंने का पुत्रा राजमंदर सिंह का पुत्र अपना शरण पता कि भरजवानी इस संसार को चला गया दुर्घटना के कारण। सो उदों बीबी जी और दूजा परिवार अमेरिका तो आए सन। इहो जिहा वड्डा दुख होवे फिर माँ प्यो को दादे दादी को सहना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं समझदा कि जो माली का बहाना बनया पर अमरजीत कौर को पोतरे का दुख ही लैके बैठ गया, क्योंकि जो यहो जिहा अकैद दुख होता है ये सियाने कहते कि साल होता है जो कभी भी पूरा नहीं जा सकता। पहले परिवार को बहुत बड़ा ना सहयोग ना पूरा जो घाटा पिया सी। सो हम फिर परिवार के विचों एक माँ का चले जाना जो सारे हौसला दे के जिमें एक वर्गी अपने बच्चों कमां के थले लैके रखती है, एक माता भी अपने परिवार इस तरह संभाल के रखती है, हौसला दे के रखती है। सो द्वारा फिर परिवार से बहुत बड़ा जो एक कष्ट आया ये भी सहन योग नहीं। इस करके अपना सतगुरु के चरणों में अरदास ही कर सकते हैं कि जय सहज सो नानी जिस ताकत सो नानी चारा पाको की जय सब नमस्कार ही कर सकते हैं। हुण भी जदों दे बीमार सी तो उन्होंने छोटी नूं वरिंदर कौर पोतरा चमकौर सिंह उदों भी इत्थे आए हुए सी। 10 रोज़ ही जाण का पहला घर जाना पैदा सी तो देखते परिवार ने बहुत ही ज़्यादा सेवा की। उन्होंने बेटी बाबरजीत कौर जो पता कि बहुत ही दूर है, तो कोटे कोटी 1000 किलोमीटर दूर है, तो वो बेचारी इतने रह गई। मंदर सिंह ने भी जिंदर कौर ने सारे बच्चों की सेवा बहुत ज़्यादा की, तो सेवा थाएँ भी गई वो केचर वो साढ़े असी बहुत कीतियां परिवार ने पर वो असी बचा नहीं सके। इस करके परिवार में बहुत बड़ा घाटा पिया। आप सारे वड्डी गिनती में परिवार नाल साझा कर लिए पहुंचे लोग पिछले 6 साल तो ही आप लोग साझा कर रहे हो, क्योंकि ये भोग का वीरवार बनता सी। सो उन्होंने पोतरा जो चमकौर सिंह उन्हें जाना है वापस, इस करके अखंड पाठ साहिब प्रकाश करके भोग में लगवाई गई है। सो मैं समझे कि जो उन्होंने छोटा सुंदर रघुल सिंह जी प्यार काका कहते उत्थे जुबशे 9-10 साल हो गए
10 साल के करीब ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਦਾ ਤਬ ਜਾਣਾ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਰਵਾਸ ਹੋਏ ਮਾਂ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਬਾਪ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਨਮਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵਪਾਰ करके आ नहीं सके उन्होंने भी शोक संदेश भेजा परिवार हमदर्दी जाहिर कर ली। जैतों के हल्का इंचार्ज जो अधिकारी रहे सुपर सिंह बादल वो भी हुणे आज ला के गए हैं जो उन्होंने भी किसी होर प्रोग्राम से जाना सी दार जगदेपाल सिंह भदौरिया गलसी आगू वो भी पहुंचे हैं दार अमरपाल सिंह वर्क बगाड़ी वो भी पहुंचे हुए हैं जजदार नंद सिंह सोढ़ी रोपड़ तो वो भी परिवार साझा कर रहे माता सरदे पर बेटकर पहुंचे हैं। इस तरह सारे नगर निवासी समूह नगर पंचायत सारे रिश्तेदार दोस्त मित्र सारे परिवार वालों जीव आया किया जाता है क्योंकि सियाने गिरते के दुख मटाने घट जाता है ये खुशी बढ़ाई खुशी बढ़ती है। सो तुम सारे ने परिवार घटाने का यत्न किया श्री आप सब का लो परिवार वालों बहुत बहुत धन्यवाद और परिवार वालों कुछ माता जी याद सेवा की गई है। सो सतगुरु ने सेवा कायम होना सरकारी डिस्पेंसरी वास्ते 6 कुर्सियां प्राइमरी स्कूल वास्ते लोहे का गेट डेरा भगवान दास वास्ते गैस पट्टी माता सेवा की गई है। गुरुद्वारा साहिब वास्ते 250 गिलासां की सेवा की गई है। इस तरह गुरुद्वारा बस्तर इस्लाम के मैट की सेवा की गई है और शमशान घाट वास्ते भी गेट की सेवा की गई है। इस सेवा का फल माता जी रूह को प्राप्त होवे और अंत अपनी अरदास है कि सब तो सारा लिखिया मिलकर पाओ देव देखो सजन असीसड़ियाँ जो होवे सहसों मेल वाहिगुरू उस विचली आत्मा अपने चरणों में निवास बख्शन और पिछले परिवार रिश्तेदारों सके संबंधियों सारे पाना मनन का बल बख्शन और परिवार को बेनती है कि जो सारा प्रोग्राम है समाप्त हो चुका है मन गुरु माई देख बरतेगी देख लेने के बाद सारे ने जो गुरु के लंगर चाह पानी सारे सके परिवार वालों बेनती उल्ला चलना नहीं सो बेनती गला माइया ने 10-15 मिनट दी इस तरह बैठिया रहन आप और पहला भाई लंगर छकणगे 10-15 मिनट बाद फिर माइया लंगर छकणगे वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ठीक है हाँ